And so today is the fourth session of the positive psychology course. And like I said, I really, really want to hear from at least one or two of you कि क्या सोच के आए थे, कैसा लग रहा है एक्टिविटीज करके, क्योंकि some of you have shared the activities. Any feedback, any thoughts? No right and wrong, इसमें कोई एग्जाम तो है नहीं. Just, just your view. अब हम मिस की तरह आपको क्लास में खड़ा नहीं कराना चाह रही मैं. Can मिस I have a go? यस सारा. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. I think it's been really good because I think there's a lot of things that we feel we know, right? हम्म. And it might be like, okay, it's not like there's anything very, mind-blowing and new, but I think just encouraging us to take that time out to actually reflect on these things, to consciously think about all these aspects of us and our personalities and our lives and our pasts. Um, I think that is a very, very important because reflecting on things that's the only way you can actually then consciously start making a change once you identify exactly what it is that's going on inside you. True, true. And I think the activities are really good, and I'm going to apologize because then my entire day gets so busy that I want to do them justice. So I हम्म. feel like nahi, main aaram se karungi when I'm actually in the moment present thinking about them. So Yes. that's no reflection on yourself. They're very good activities. It's just unfortunately myself who's not getting the chance. But I do feel like these are things I will do in हम्म. my own time when I can commit to them, Absolutely. and actually be able to shut off other disturbance and noise in my life so that I can focus on properly exploring these. Absolutely. But I have found that, Alhamdulillah, like, just that reflection and kind of being able to identify things, हम्म. and just being more conscious, is very, very important. So, no, I'm really enjoying it. Thank you. लवली. और बिल्कुल मेरे ख्याल में सही बोला. आई थिंक द जिस्ट ऑफ साइकोलॉजी इज दैट, वो जो हम बार बार कह रहे हैं, द जिस्ट ऑफ साइकोलॉजी इज कि साइकोलॉजी आपकी फितरत है. तो अ लॉट ऑफ व्हाट यू स्टडी लर्न, आपको होता है कि ये तो मुझे आता है, ये मैं कर रही हूँ. लेकिन आइदर यू गेट रीश्योर्ड दैट जो आप कर रहे हो वो ठीक है, और यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, राइट. और वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि इट्स यू कनेक्टिंग विद योर सेल्फ. एंड इतने केओस में, इतने बिजी लाइफ स्टाइल में हम सब हैं. समटाइम्स जस्ट टेकिंग दोस फ्यू मिनट्स आउट एंड रिफ्लेक्टिंग, एंड मे बी इतनी सारे, अभी भी मुझे यकीन है कि जब ये क्लास चल रहा होगा तो शायद बैकग्राउंड में आप और कुछ काम कर रहे हो, व्हाटएवर, दैट्स फाइन, आई रिस्पेक्ट दैट. बट आई एम सेइंग समटाइम्स यू हियर समथिंग एंड इट क्लिक्स एंड इट स्टेज विद यू. एंड आई थिंक दैट्स समथिंग जो हमारा मकसद है. तो इस तरह की कोर्सेज में टचिंग विद योर सेल्फ, टचिंग विद योर सोल बेसिकली. And then the other thing is to empower you, to make you realize that you can do it. You can take some sort of charge or control, inshallah. Any other thoughts from anyone? Anybody जिसने एक्टिविटी ट्राई की है? और जरूरी नहीं तारीफ करें कि नहीं बहुत मजा आ रहा है, नहीं. मे बी इफ इट इज समथिंग दैट यू फील आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, या ज्यादा, आई डोंट नो, ओवरवेलम कर रहा है, सो यू कैन शेयर दैट फीडबैक ऑल्सो इफ दैट्स हाउ यू फील. So what I will do is called giving space, right? So हम कहते चलो, I'm giving you space, but I know that some of you have sent individual feedback and that's wonderful. लेकिन अपने लिए कर रहे हो, जब आप फीडबैक देते हो या कोई इस तरह बात कर रहे हो, तो डोंट थिंक कि आप मुझे कह रहे हो ओ ये कोर्स ऐसा नहीं है. इट्स नॉट दैट. इट्स अगेन पूरी बात ये होती है कि आप कैसे परसीव कर रहे हो. जब हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर यू वो कहाँ जाके क्लिक करता है, या फॉर यू वो क्या मायने रखता है. So for everybody, the general discussion is general, but how you take it, how you relate it to yourself can be different. So I think it's very, very important to reflect on it. And that's where inshallah, the journey of growth जिसकी तरफ हम जाना चाह रहे हैं वो achieve होगा. So today is the last session of this week. Weekend पे हमारी क्लास नहीं होगी, और फिर इंशाल्लाह Monday and Tuesday. So 2 more sessions are left. So again, हम अगर क्विकली समराइज करें कि अब तक हमने क्या किया है, तो हम यहाँ पर आ रहे हैं. वी आर मीटिंग टू डिस्कवर समथिंग विच इज अ पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ
ऑफ योर सेल्फ, हाउ टू बिकम मोर पॉजिटिव। चलो राइट, लेकिन हम ये कह रहे थे कि देखो अच्छी अच्छी बातें अगर आपको करनी है, कल भी मुझे किसी ने मैसेज किया इस ग्रुप में से, आउटसाइड ऑल्सो आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड दैट पर्सन टोल्ड मी दैट ओ आई हैव गॉन टू अ साइकोलॉजिस्ट बिफोर बट मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। एंड आई सेड क्या फायदा नहीं हुआ? तो चले उन्होंने बोला कि जो है ना आप आई डोंट नो, मतलब whether it's deep breathing or take a walk or do some mindfulness activities or any sort of strategies that they say to kind of manage your thoughts, and the person said that it wasn't helpful to me, या किसी और person ने भी कहा कि मैं psychologist के पास गई, मैंने सब बताया लेकिन helpful नहीं था। तो जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो हेल्पफुल क्यों नहीं था, भाई क्या वजह है, so sometimes the answer, and obviously not all the time, but sometimes the answer is exactly what I've been trying to tell you, कि सरफेस लेवल पे जो है ना, अगर कोई हम एक्टिविटीज या मशवरे या एडवाइस आपको दे दें कि यूं कर लो, ये स्ट्रैटेजी, इट माइट नॉट वर्क, particularly for those who have some deep rooted issues। और डीप रूटेड हमने बात कर ली थी, वही ट्री की जो हम बार बार रिफ्लेक्ट करेंगे कि अगर डीप डाउन आपके रूट्स में, आपके ट्रंक में, आपकी स्ट्रेंथ में, आपके इनर स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं कोई गैप्स हैं, कोई काइंड ऑफ इमोशनल baggage है, then perhaps the superficial, I literally call it superficial, therapies might not work. You need some sort of deeper help, and there is no shame and no harm in seeking help, right? But पहले उस हेल्प सीकिंग से पहले आता है अवेयरनेस। ये वाली जो कोर्सेज होती है ना, वो अवेयरनेस के लिए होती है कि आपको पता तो चले कि मतलब किस चीज के लिए मुझे हेल्प की जरूरत है। सो समटाइम्स अवेयरनेस, एंड देन अवेयरनेस के बिल्कुल साथ आता है एक्सेप्टेंस, कि आप अवेयर हो गए, चलो ठीक है, अब आपको समझ आ। अब एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस ये है कि okay, this has happened to me. I need to take control, or I need to take charge, and I need to do something to solve this problem, है ना? ये अब आपके इख्तियार में है कि आपको कुछ करना है या नहीं करना। कोई जबरदस्ती तो आपसे नहीं करवा सकता। तो इसीलिए मैं हमेशा मदर से कहती हूँ कि मामा, इफ यू हैव अ चाइल्ड एंड यू आर स्ट्रगलिंग कि भाई इस बच्चे को आप ठीक कर दें, लेकर आते हैं, फिक्स कर दें, तो आई से मम्मी, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10 आप किसी तरह उनको पटा के बना के यू कैन ब्रिंग देम टू थेरेपी और द क्लिनिक, बट द मिनट दे टर्न अराउंड 10 अबव, फिर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप अगर लेकर भी आ गए ना उनको, तो एज अ टीनेजर आई हैव सीन चिल्ड्रन हु विल नॉट अटर अ वर्ड, सामने बैठे होंगे, मैं आपसे बात ही नहीं कर, मुझे आना ही नहीं था, ये तो मामा लेके आई हैं या बाबा लेके आए हैं या मिस ने भेजा है, मुझे नहीं करनी आपसे बात। तो आप नहीं उनके मुंह से कोई चीज निकाल सकते, एंड यू हैव टू वर्क अराउंड दैट। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बट ऑब्वियसली बिकॉज एक्सेप्टेंस इज नॉट दैट। छोटे बच्चों को हम किसी तरह अपने तरीके से कर लेते हैं, तो एक्सेप्टेंस इज अ वेरी बिग थिंग, कि अच्छा आपको नॉलेज भी आ गई है, अब आप एक्सेप्ट करो दैट आई नीड टू डू समथिंग। सो छोटी छोटी टेक्निक्स हम इधर शेयर कर रहे हैं। वो जो टेक्निक्स हम शेयर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प, yani to the extent that you can try these strategies yourself. If you think that no, these strategies are not working, or I've tried it but I can't do it, या इतना मेरे माइंड में केओस है या तकलीफ है या इतने सारे एक साथ थॉट्स हैं या सवाल हैं कि मैं नहीं अपने आप को अनटैंगल, हम कहते हैं ना अनटैंगल करो, तो अ गुड therapist or a good therapy session is supposed to do that. It's supposed to take your own thoughts, your thoughts, and help you untangle it and try and kind of support you through the process. तो आपको ऐसा नहीं है, कल मुझे कोई कह रहा था कि मैं थेरेपिस्ट के पास गई और उसने मुझे ये कहा कि ये आपके मसले आप देख लें। मैंने उससे ओके, मैं इस वक्त थेरेपिस्ट की थेरेपी मतलब उनको करेक्ट करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि दैट्स नॉट द राइट टेक्निक। सो मैंने आपको दो तीन चीजें बता दी। इफ देयर इज अ थेरेपिस्ट हु इज टेलिंग यू आप ये कर लें, ये ना, ये वो होता है ना कि आप एडवाइस दे रहे हैं कि ये कर लें, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, चॉइसेस दे सकते हैं कि ये किया जा सकता है, आप देखें आपको क्या सही लगता है, वो टेक्निक सही है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो विद ऑल योर थॉट्स एंड वो कह रहे हैं नहीं नहीं भाई ये तो आपका मसला है, मैं आपका ये वाला इशू पहले देखूंगी, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा अप्रोच में। तीसरी चीज मेरे साथ ही मतलब मेरा एडवाइस आपको ये है कि इफ यू गो फॉर थेरेपी, remember that for me it is like I don't know,
choosing your best hairdresser or choosing your best tailor, जो आपको तो इतने सारे हैं, लेकिन आपको इसी की फिट सही लगती है, या यही आपके आईब्रोज परफेक्ट बनाते हैं ना, इसी का हाथ अच्छा है. आई नो इट्स अ वेरी सिली एग्जाम्पल, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट फिट. एंड फॉर मी थेरेपिस्ट इज ऑल्सो लाइक दैट, कि भाई आप देखिए कि आपका जो है ना वो किससे मैच हो रहा है, because it's a two-way process, it's a relationship. So if you're seeking help outside, so these are the kind of things that I unfortunately आजकल मैं कह रही हूँ बहुत ही सूडो थेरेपिस्ट हैं या थोड़े से अनट्रेन्ड थेरेपिस्ट हैं जो कि हम फील्ड को और खराब कर रहे हैं. तो इफ यू आर गोइंग और सीकिंग हेल्प, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जिनको माइंड में रखना. एंड अगेन योर गट फीलिंग, इफ इट डजंट फील राइट, देन वो हम कहते हैं ना कि व्हेन इन डाउट चेक इट आउट. आपको अंदर से कोई डाउट हो ना, तो थोड़ा सा रुक के देख लो कि मे बी दिस इज नॉट राइट फॉर यू. सो डोंट फील दैट एवरी टाइम यू गो टू अ थेरेपिस्ट इट हैज टू वर्क. बिल्कुल डॉक्टर्स के साथ भी ऐसे होता है ना. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव गॉन टू अ डॉक्टर एंड यू आर लाइक नहीं, and then you go to a doctor just because sometimes they talk to you nicely, they listen to you, they guide you, they explain you. आपको लगता है आधी बीमारी आपकी वहां ठीक हो रही है, because that people skill is that relationship building is there. So those are the kind of things that are extremely important. खैर कहाँ से कहाँ बात निकल गई, लेकिन I felt that these were important points to kind of think through. तो हम बार बार जो बात कर रहे हैं वो यही है कि आप स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी, चाहे जितनी भी challenges हो. Life itself is a roller coaster. Life itself is waves. ऊपर नीचे जिंदगी है ही like this, right? Some days are good, some days are bad, some days can be extremely challenging, but that's part of life. But even in very challenging circumstances, जो starting point है ना लाइफ का, या starting point है किसी भी हम कहते हैं चैलेंज को फेस करने का, कि मैं कैसे करूं. स्टार्टिंग बाय, खुदा भी आपसे ये कह रहा है, साइकोलॉजी भी ये कहता है कि ग्राउंडेड, आप किस ग्राउंड पे खड़े हो, राइट? और वो ग्राउंड ये होता है कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स हैं, बट क्या मेरे पास है, right? What are my blessings? What are the things that I'm thankful of? What is my things that I'm grateful of? And that's your gratitude, and that's how you build. अब क्या हमने बात की थी कि yes, maybe you have problems in your ground, maybe you have problems in your root, but fair enough. हम उस पे भी आज बात करेंगे कि अगर है तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि देखो, वो था ना, वो आपके रूट्स में था, आज आप इधर पहुंच गई, राइट? इतने, वो हम कहते हैं, इतने बड़े हो गए, यू हैव अचीव्ड. इट्स नॉट लाइक यू हैव नॉट अचीव्ड एवरीथिंग. And if you're sitting here today in this class trying to learn a bit about yourself, तो मैं कहती हूँ ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ है. ठीक है, परेशानियां थी, लेकिन आप खुदा ना खास्ता, you did not go down the other route. You became strong enough to be able to take care of yourself. And today you decide that ठीक है, वो चीजें थी मेरी जिंदगी में जिसने मुझे शायद परेशान किया या मेरी मदर को परेशान किया, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये कहते हैं क्वालिटीज आई हैं या पेन आया है. And so what do you want to do? Do you want to carry the same thing and transfer it to the next generation? Yeah, do you want to do something about it? And the fact that you've gathered here, the fact that you want to learn about it, the fact that you've identified, for me is the beginning of change, right? कि हाँ, आप समझ रहे हो कि अब कुछ किया जा सकता है इसके बारे में और मुझे करना चाहिए. If you feel that हाँ, ये आपके अख्तियार में है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ. मैं वो अंडू तो पास तो मैं अंडू नहीं कर सकती, लेकिन अभी फिलहाल अपने लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एंड सर्टेनली अपने आगे वाली जेनरेशन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ. दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. फिर इसके बाद हमने क्या कहा था कि इवन इफ योर ट्री इज देयर एंड ब्लेसिंग्स आर देयर, देयर आर मोमेंट्स इन योर लाइफ एंड यूर लाइक थोड़ा बहुत आप शेकी हो जाते हो. और अक्सर आप शेकी कब होते हो कि अंदर तो आपके अंदर अच्छा कहते हैं स्ट्रेंथ भी है, बिलीव भी है, फेथ भी है, होप भी है, लेकिन आसपास में यू आर हियरिंग सो मेनी थिंग्स. एंड ऑल्दो पीपल टेल यू छोड़ दो, ऐसा मत सोचो, उसको मत सुनो, वो तो ऐसे हैं, फिर भी आप इंसान हो, राइट? दर्द फील होता है. और अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली कुछ कह रहा है, तो देन दैट begins to become your thought process. जो हम कल बात बोल रहे थे,
कि वो फिर आपके अंदर की आवाज बन जाती है और फिर वो अनहेल्पफुल थॉट्स बन जाते हैं, एंड देन दोज बिगिन टू कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली बिकम योर थॉट प्रोसेस। उसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, राइट? जैसे हमने कल क्या कहा था वो बच्चे के बारे में, याद है कि वो ही इज ग्रोइंग अप बिलीविंग। हर बच्चा मासूम है, अल्लाह ने तो बड़ा प्यारा हमें बना के दिया है, राइट? लेकिन अगर आप बचपन से ये सुनते आ रहे हो कि तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो देन दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। बिकॉज आप अपने बड़ों को देख रहे हो, आपकी तो पूरी उम्मीद है आपके बड़े हैं, आपके बड़े ही आपको कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, तो इमेजिन व्हाट विल हैपन, राइट? उसके साथ वी सेड दैट maybe you have had a beautiful childhood, maybe you grew up, maybe you became an adult, and then people started saying, and then you began to go into self-doubt. But ultimately, that became your inner voice, that became your whispers, and then that led to self-doubt and self-guilt. तो अगर ये पॉइंट आपके पास आ रहा है कि योर इनर वॉइस becomes painful or becomes a system which brings you down, तो कल हम क्या कह रहे थे कि वो पॉइंट है that you have to start, just detach yourself and try and ask yourself, is this my belief about me, or is this somebody else's voice जो मेरे कानों में आ रही है? उनका मेरे बारे में ये ख्याल है या मैं भी अपने बारे में ये सोचती हूँ, राइट? एंड दैट्स समथिंग वी प्रैक्टिस। और वहां से फिर हम कॉन्सेप्ट पे आ जाते थे कंट्रोल के, कि दूसरे क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, या दूसरे मुझे क्या कह रहे हैं, या दूसरे मुझे किस तरह से चला रहे हैं, वो मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं उनको नहीं रोक सकती। बट मेरे इख्तियार में क्या है, मैं मेरा अपने बारे में क्या ख्याल है, हाउ डू आई रिएक्ट, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड, हाउ डू आई मैनेज। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि आपकी बाउंड्री क्या है और दूसरे क्या कर रहे हैं, अगर जब वो डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो फिर हम कहते हैं अब आप करोगे अपनी थॉट को चैलेंज, कि आप बोलोगे वो मेरे बारे में ऐसे कह रहे हैं, या उनका मेरे बारे में ख्याल है, या हर बार मैं मिसाल के तौर पे वो जो शुड मस्ट ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग की हमने बात की थी, हम एक एक थॉट को, जो भी आपका थॉट पैटर्न है, उसको चैलेंज करेंगे। और जब वो चैलेंज करेंगे तो हम कहेंगे अच्छा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, मतलब क्या आपका डर है, व्हाट विल हैपन, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता उसको तोड़ते तोड़ते चैलेंज करते करते वी रीच अ पॉइंट वेयर यू रियलाइज मैं खाम में इतना परेशान हो रही थी क्या। अब ऑब्वियसली ये मैंने आपको बहुत जल्दी से वो किया, बट स्लोली स्लोली व्हेन यू डू दैट यू रियलाइज दैट यू नो maybe it wasn't that bad, maybe I was stressing more। ये चीज जो है वो आई सजेस्ट, देखो नॉर्मल सिनेरियो में हम ये ट्राई कर सकते हैं, बट समटाइम्स आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट के लोग इतना बुरा फंस गए होते हैं दैट वो अपने आप को वही बात अनटैंगल नहीं कर पा रहे होते, नहीं अपने थॉट प्रोसेस को भी क्लियर नहीं कर पा रहे होते हैं, कि आप अपने माइंड से डिबेट करो या अपनी लॉजिक से डिबेट करो। एंड दैट्स वेयर वी से दैट इफ यू फील रियली रियली ट्रैप्ड, रियली रियली फॉग्ड, ब्रेन फॉग वाला, तो फिर गो एंड स्पीक टू अ प्रोफेशनल जो आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप गाइड कर पाएगा और आपको आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करेगा, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको, ताकि आप सही जो कहते हैं इंटरवेंशन, हम कहते हैं टेक्निक अप्लाई कर सको टू बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ। फिर आज का टॉपिक क्या था, हमने चलो ये वाला वो करके फिर हम आज के उस पर आते हैं, कि हम यहाँ थे कि if you do that, if you decide कि okay I want to help myself and I want to clear my thoughts, then I told you that sometimes when you clear your thoughts also, हम उस पॉइंट पे आते हैं that हमें फिर भी अंदर अभी है ना, मेरा कहते हैं ना, अभी भी आई एम वेरी एंग्री एंड आई एम स्टिल वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दैट पर्सन or that event or that situation is still bothering me। फिर मैंने आपसे कहा था कि कुछ टेक्निक्स हैं that we can try, it doesn't necessarily work with everybody, but हाँ sometimes जो भरा हुआ है, हम कहते हैं रिलीज एंड रिलैक्स, है। रिलीज क्या था, दैट यू जो भी आपके थॉट्स हैं या जो भी आपके इमोशंस हैं उसको क्लियर करो, so that you release that all energy and you clear your thoughts and you change the perspective of your thinking।
एंड देन टू रिलैक्स यू डू रिलैक्सेशन एक्टिविटीज. अब रिलैक्सेशन एक्टिविटीज में हमने कहा भाई ओके, यू कैन डू राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग. सम ऑफ यू वर टेलिंग मी दैट जब आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक्टिविटीज की और उसमें कोई पेंटिंग की और ड्राइंग की, तो यू फेल्ट गुड. द यूज ऑफ कलर्स, द यूज ऑफ काइंड ऑफ पैटर्न्स, डिजाइंस. ये पूरी आर्ट थेरेपी एक बहुत बड़ी फील्ड है, राइट? 4 साल का मास्टर्स है आर्ट थेरेपी. तो यूजिंग आर्ट एज अ थेरेप्यूटिक टूल, it's very in depth. So basically, for those of you who are interested, there's an article मैं share करूँगी. There is the science behind the art. Why does it work? Why does art help you to relax? But again, some people enjoy it, some people get more frustrated कि नहीं भाई मुझे तो नहीं पसंद है. ठीक है, find your thing. This is the thing. For some, like I said, laughter helps. For some, like I gave an example of a big potato. तो वो potato को आज हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे ताकि मैं आपको क्लियर करूं कि मैं क्या कहना चाह रही थी. सो हमने कल बात जहाँ पे एंड की थी वो ये थी कि at the end of the day, what I was trying to tell you is to develop hope, to develop kind of a sense of positivity in yourself. हमें अपने आप को पॉलिश करना है. पॉलिश करने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, राइट? और तकलीफ ठीक ठाक मैं आपको 3-4 सेशन से दे रही हूँ, मुझे अंदाजा है. बट व्हाई आर वी डूइंग दैट? इज बिकॉज सुपरफिशियली इट्स नॉट गोना हेल्प यू. वी हैव टू गो स्लाइटली डीपर डाउन टू अंडरस्टैंड क्या चीज मुझे अपनी फिक्स करनी है तो मेरा आई एम गोइंग टू ग्लो. सो आई एम गोइंग टू ग्रो, राइट? सो यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट ग्रैटिट्यूड, होप, और कल का हमारा था सेल्फ केयर, सेल्फ लव. कितना इम्पोर्टेंट है कि मैं डिसीजन लूं कि मुझे अपनी जिंदगी से क्या करना है, राइट? क्या इनकी बड़बड़ बड़बड़ कांस्टेंट बोलना 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 बोलना, मैं इस बात पे यकीन कर लूं कि मैं ऐसी हूँ, या मैं इस चीज का डिसीजन लूंगी कि नो, वो उनका व्यू है, वो उनका कंट्रोल है, मेरा मेरा अपने ऊपर क्या कंट्रोल है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपना ख्याल कैसे रखती हूँ, व्हाट इज माय सेल्फ केयर प्लान, राइट? तो उसी से रिलेटेड, बिल्कुल उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक भी आप लोगों के लिए गिफ्ट है. और उसी से रिलेटेड ये है कि देखिए, हम जो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि every single person in the world is wounded or struggling in their own unique ways, right? कोई भी नहीं आपको खड़ा होकर आपने 2 मास्टर्स किए हैं, या आई हैव अ फ्रेंड हु हैज डन 3 मास्टर्स एंड 1 PhD, इमेजिन, राइट? अब कितना पढ़ोगे? मैं उसको ये कहती हूँ, सना नाम है उसका, ऐसे सना बस, राइट? बट इवन, और ये सब साइकोलॉजी के कोर्सेज हैं, तो इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि आपने इतना पढ़ लिख लिया तब भी आपकी जिंदगी में कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे, और एज अ साइकोलॉजिस्ट यू विल नेवर स्ट्रगल. इट डजंट वर्क दैट वे. वी ऑल हैव. बल्कि अगेन हमारे अकीदे के मुताबिक अगर परेशानियां नहीं आई तो अल्लाह कहे परेशान हो जाओ. व्हाट इज रॉन्ग? Right? Why? Every time you know that there is a challenge, you know that wow, Allah is looking directly at me right now, right? How do I manage this? So challenges और struggle is part of life. जहां तक wounded की बात है, wounded एक बहुत again deep word है, right? And the deeper you go, so wounds can be any pain that you're carrying, any sort of emotional weight that you're carrying. अगर अगर हम ये कहें कि भाई सबके पास मसले हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं? व्हेन यू अलाउ योरसेल्फ टू बी कंप्लीटली ओपन टू सी दैट, you open the door unlimited compassion, love. अच्छा फर्ज करो मैंने आपको 2-3 कहानियां सुनाई, आज भी मैं आपको 2-3 कहानियां सुनाऊंगी. अगर मैं आपको किसी बच्चे की, किसी मदर की कहानी सुना रही हूँ, राइट? जैसे उस मदर इन द केज एंड द वन हु वाज स्ट्रगलिंग विद अ 15-year-old. मुझे यकीन है, आप मुझे कोई नजर नहीं आते बाय द वे, राइट? लेकिन मुझे यकीन है, फॉर मी टू कनेक्ट विद अ पर्सन आई नीड टू सी, एंड पर्टिकुलरली सी द आईज. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टिल नो मोस्ट ऑफ यू, बट आई एम जस्ट सेइंग, मुझे यकीन है कि जब मैंने आपको किसी की कहानी बताई जिसको ना आप जानते हो ना आपने उसको देखा है, लेकिन इंसानियत के नाते when I told you the story, you felt something, right? And if that mother was in front of you, आप उसको अच्छी तरह डील करते ना, आप उसको कंपैशनेटली डील करते, आप उसको कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, परेशान हो लेकिन हो जाएगा सबसे, थैंक यू कनीस. ठीक है, आप उसको समझाते, आप उसका
कोशिश करते इंसानियत के नाते के सहारा बने। मुझे यकीन है कि आप में से कोई उसको ऐसे डांटता नहीं या कोई बुरी बात नहीं बोलता। इवन इफ आपके दिमाग में होता कि यार ये अम्मी सारा दिन काम करती है तो उसकी बच्ची निकल तो जाती घर से, मिसाल के तौर पे इंसान है हम, वो थॉट भी आ सकती है कि 15 साल की बेटी है, अगर सारा दिन अम्मी काम करेगी तो घर से बच्ची तो निकलेगी, ये थॉट भी आपकी आ सकती है। लेकिन मुझे बहुत यकीन है कि इन मोस्ट केसेस एट दैट टाइम, अगर एक माँ रो रही है और अपने बारे में बता रही है कि मेरी ये जिंदगी है और मेरा आई नो ब्रेन के अंदर सिस्ट भी है और मैं तकलीफ में भी हूँ, मुझे आप अच्छे से डील करोगे उसको, या नहीं करोगे। सो वो जो कंपैशन आप दूसरों के लिए दिखाते हो ना, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि इतनी मोहब्बत, इतनी केयर, इतनी कंपैशन बस मैं चाहती हूँ आप अपने आप को भी दिखाओ। राइट? क्या वजह है कि हम दूसरों की तरफ इन मोस्ट केसेस कंपैशनेट हैं, केयरिंग है, प्यार से बात करते हैं, उनकी सुनते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो वी फॉरगेट टू गिव आवर सेल्फ कंपैशन, वी फॉरगेट टू गिव आवर सेल्फ दैट लव एंड केयर। राइट? तो कल की ही बात से हम आज की बात को रिलेट करते हुए कंपैशन को समझें कि दूसरों के साथ अच्छा होना तो बड़ा आसान है, समटाइम्स हम भूल जाते हैं कि हमें अपना भी ख्याल रखना है एंड कंपैशनेट होना है। तो कंपैशनेट की तीन टाइप्स हैं। अच्छा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब स्पेशली हमारे अकीदे वाले लोग जो है ना बड़े तंग करते हैं, कभी मुझे लोग कहते हैं कि ये आप क्या सिखा रही हैं, सेल्फ केयर और सेल्फ कंपैशन, ये तो आप खुद गर्ज होना सिखा रही हैं। तो ऐसे नहीं है। खुदा भी आपसे कहता है कि चलो पूरा दिन भी निकल गया ना, तभी जब सोने जाओ तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करो। हमारे रिलीजन में सेल्फ रिफ्लेक्ट के ऊपर बड़ा काम है, बहुत एम्फेसिस है। देयर मस्ट बी अ रीजन, बिकॉज यू नो दैट इफ यू आर स्ट्रांग, यू आर काइंड टू योरसेल्फ, यू आर कंपैशनेट टू योरसेल्फ, आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होगी। फिर से मैं कह रही हूँ, हम सब परेशान हैं, और खास तौर पे आज के दौर में हर तरफ से, मतलब every morning you get up, you hear something which is distressing, है ना? चाहे कहीं भी हो रहा है, तकलीफ कहीं भी हो, हम सब फील कर रहे हैं। सो देर इज सो मच हैपनिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे टू बी एबल टू केयर फॉर अदर्स, टू बी एबल टू बी काइंड टू अदर्स, टू बी एबल टू काइंड ऑफ बी देयर फॉर अदर्स, एक चीज है जो साइकोलॉजी में अगेन हम कहते हैं टू होल्ड स्पेस फॉर अदर्स। राइट? यानी दूसरों का ख्याल रखने के लिए आपको वाकई अपना पहले ख्याल रखना है, थोड़ा थोड़ा। तो हम सीखेंगे कि हाउ टू बी कंपैशनेट टू योरसेल्फ, तो उसके अंदर ऑब्वियसली काइंडनेस आती है, उसके अंदर अपनी तरफ का ख्याल आता है, और ये रियलाइज करना कि वही अगेन एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग इन देयर ओन वेज, एंड दैट इज व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ यू। अब थोड़ी देर मुझे इस टेक्निक पे आज लगाना है, राइट? कल क्योंकि जो पटेटो वाली बात बोली थी तो दो तीन लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप समझाएं, तो मैंने कहा चले मैं समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही थी। देखो, मेरा पॉइंट ये है, और ये चीज ऑब्वियसली मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ मुझे आइडियाज नहीं है, ऑब्वियसली एक टेक्निक है, एक ट्राइड टेक्निक है, और मैंने आपसे कहा कि मुझे खुद मजा आता है ये करने में, आई हैव ऑलवेज यूज्ड इट एंड इट इज ऑलवेज वर्क विद मी एंड आई शेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव एंजॉयड इट। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कल क्या कहा कि देखो, बहुत ज्यादा जरूरी है दैट इफ देर इज somebody in your life, whoever it is. Say, as an example, I don't want to take any names or anything, but there is somebody in your life who is constantly saying things to bring you down. Now, it can be a parent, it can be in-laws, it can be your boss, it can be anybody. लेकिन करीबी कोई ऐसा जो एवरी डे आपकी जो है वो लाइफ का हिस्सा है बेसिकली, राइट? तो आप उसको उठा के निकाल नहीं सकते, वो है उधर है, और आप कॉन्स्टेंटली उस चीज को सुन रहे हो इंटरनलाइज। अच्छा, आपका बड़ा दिल चाह रहा है कि आप सामने जवाब दो और सामने बोलो, अब यार टू चॉइस, राइट? जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, बेटा उसने आपको मारा तो आप भी उसको मारोगे, तो फिर आप में और उसमें क्या फर्क रहता है ना? जब हम छोटे छोटे बच्चों को बिहेवियर काउंसलिंग कराते हैं तो पहला पॉइंट हमारा यही होता है, देन वुड यू लाइक टू बी लाइक दैट ऑल्सो? तो पहले ये सेट कर लें स्टेज। तो आपसे भी मैं यही पूछ रही हूँ कि भाई वो चीख रही है आपके ऊपर, आप भी चीखना ही चाहते हो, तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप उनको बराबर हो गए। और फिर आपके बच्चे क्या देख रहे हैं? आपके बच्चे भी यही देख रहे हैं, हाँ हाँ मम्मा भी ऐसी है। फिर थोड़े दिन बाद जब बच्चे आप पे चीखेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा कि बदतमीज हो गए, सामने जवाब दे हैं। तो
I remember, I can never forget. I remember that one of my first cases जो यूके में मैं थी was like a 5 year old boy. तो खैर वो गोरे थे, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि that the boy had come to the clinic with the father. और उनका जो प्राइमरी कंप्लेन था वो यही था कि बड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है और बहुत हर किस्म के वर्ड बोलता है। एंड तो जो मेरे साथ वो थे, ऑब्वियसली कंसल्टेंट थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने फादर से पूछा कि वेयर डू यू थिंक ही लर्न दिस, राइट? 5 साल का बच्चा है, इतने बड़े बड़े वोकैबुलरी यूज कर रहा है, तो उन्होंने बोला वेयर डू यू थिंक ही लर्न इट। और उसके जो फादर का रिप्लाई था ना, वो विद इन अ मिनट उन्होंने एक जुमला बोला, आई विल नॉट रिपीट दैट जुमला, लेकिन उस एक जुमले में उन्होंने 3 से 4 दफा एक कलरफुल वर्ड बोल दिया, है ना। And वो कंसल्टेंट मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ, और मैंने कहा उस आदमी को एहसास भी नहीं है कि उसने, क्योंकि इतनी आपकी आदत हो जाती है कभी कभी, दैट आप एहसास भी नहीं करें कि आपने मुझसे बात करें, आप कंसल्टेंट से बात करें, आपने एक ही जुमले में सवाल ये वेयर डिड यू लर्न दिस बिहेवियर, और वो जवाब में भी उसने 3 दफा वो वर्ड यूज कर लिए। एंड ओ ओके, यू नो। फिर उसको, उस फादर को ये एहसास दिलाना है कि आप, आपने सुना, आपने क्या बोला, राइट। उसी तरह कभी कभी हमें ना अपने मदर्स को सिखाना पड़ता है कि मामा, आप आप क्या बोल रही हो कि मेरा बच्चा मुझे नहीं सुनता। जरा इसको बैक ट्रैक करके देखते हैं कि कहाँ से ये आ रही है लाउड टोन और बदतमीजी और सामने जवाब देना, और right? So again, the choice is yours. It is hard. It's very hard to control. Right? यहाँ तक आता है, यहाँ भी माशाल्लाह वोकैबुलरी बहुत है हम सबके पास, और गुस्से में तो कहाँ कहाँ से वोकैबुलरी आती है। तो वर्ल्ड बैंक हम सबका भरा हुआ है, बट द चॉइस, वो जो हम कहते हैं ना, चॉइसेस में कुछ कुछ लम्हे होते हैं हमारे पास चॉइसेस लेने के लिए। बट मिसाल के तौर पे आप डिसाइड करो कि भाई मुझे मुझे नहीं करना, राइट, मुझे बदलना है, मैं नहीं सामने जवाब दूंगी, मैं नहीं करूंगी। तो आप कंट्रोल करते हो। आप कंट्रोल कैसे करते हैं? ये गुस्सा है ना, राइट, यू कंट्रोल करते हो। जैसे हमारे रिलीजन कहता है आप वहां से हट जाओ, ठंडा पानी पियो, वजू करो, ये करो, हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं। तो समटाइम्स छोटे छोटे बच्चा ऑल्सो कमेंट से, लेकिन आंटी अभी भी मुझे गुस्सा आ रहा है, राइट। मैंने वजू भी कर लिया, मैंने क्या वो दुरूद भी पढ़ लिया, और मैंने सब कर लिया, पर मुझे गुस्सा आ रहा है। वो बिल्कुल जायज है उसका गुस्सा, बिकॉज हमने उसके वर्ड्स को रोक दिया, उसके यहाँ इमोशन को क्या होगा, दिल तो मेरा फट रहा है अभी भी, राइट। सो उस वक्त हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है दैट ऑल इमोशंस नीड एक्सप्रेशन। जो कल मैंने क्या कहा था, रिलीज रिलैक्स, रिलीज रिलैक्स। तो वो जो रिलीज है, वो हम कहते हैं ना उसी वक्त मेरा होगा जब मैं इसको मार के आऊं। अब हम कहते हैं देखो ये जो भरा हुआ है ना, ओके व्हाट एल्स यू कैन डू। वन ऑफ द चॉइसेस क्या, हाँ आप भी उसको ही सुना के आओ, आप भी उसको बोलकर तुमने तुमने मेरी जिंदगी खराब की है, मिसाल के तौर पर, या तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। या फिर आप बोलोगे वो जो मेरे अंदर भरा हुआ है मैं और कैसे निकाल सकती हूँ। तो वन ऑफ द टेक्निक्स, और ये जो एम्प्टी चेयर टेक्निक है और पोटैटो, ये दोनों समझा रही हूँ मैं आज। एम्प्टी चेयर टेक्निक ज्यादातर हम यूज करते हैं उन लोगों के साथ जिनका, मिसाल के तौर पे चाइल्डहुड में देयर वाज समथिंग दैट दे फेल्ट कि आई डोंट नो, आपके फादर ने आपके साथ कुछ किया, या आपकी मदर ने किया, या आपके बड़ों ने आपके साथ कुछ किया। और जिन्होंने आपके साथ कुछ किया मीन्स कि आपकी पेरेंटिंग में आपको अब्यूज किया, फिजिकली हो, इमोशनली हो, राइट। somebody has hurt you, somebody has harmed you, और वो नहीं है आज, या आप रियलाइज करते हो कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरा बचपन था वो एक तकलीफ दे पीरियड था, वो मेरा मेरा जो बचपन है वो तो चला गया, लेकिन उसका जो वूंड है या उसकी जो तकलीफ है वो अभी तक मेरे अंदर है। आप समझो, दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज नॉट देयर। आपका अपना कुछ छोटी सी गुड़िया जब आप थी वो तो नहीं, लेकिन आपको ये याद है कि वो बहुत मुश्किल दौर था मेरे लिए, मिसाल के तौर पे। सो 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं कि चाहे वो ऐसा टाइम पीरियड हो विच इज नाउ नॉट देयर, या अ पर्सन हु इज नॉट देयर, लेकिन आपकी मेमोरी में वो तकलीफ, वो वूंड अभी तक है। और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि वो जिंदा है इंसान, आप रोज उसको देखते हो, मिसाल के तौर पे आई डोंट नो योर इन लॉज, और समटाइम्स योर सिबलिंग, समटाइम्स योर बॉस। तो 2 एग्जाम्पल हो गए, राइट। दोनों सिचुएशन में
कहने का मकसद ये है कि आपके दिल में तकलीफ है और आप उस इंसान को कुछ बोलना चाहते हो, आप कंप्लेन करना चाहते हो, आप शिकायतें करना चाहते हो, आप उसको बताना चाहते हो। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं भी उसको वो तकलीफ देना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे वो तकलीफ दी, टू एन एक्सट्रीम। हम यही कहते हैं ना, लास्ट ऑप्शन यही है कि अल्लाह उसको भी उसी तकलीफ से गुजारे जो उसने मुझे दी। मिसाल के तौर पे कितना भरा होता है, सबका अलग अलग है। पॉइंट हियर इज दैट अगर ये आप अपने अंदर 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 रखोगे, राइट, बड़े भी हो गए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, राइट, जिंदगी का पहिया घूम रहा है। बट इफ यू आर कैरिंग दैट वेट इनसाइड यू, देन for whatever reason, if you haven't healed that part of you, वो आप पूरी तरह से आप खुद देखोगे कि कुछ ऐसा लगता है जिंदगी में मेरे पास सब है, अल्लाह ने मुझे सब दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कुछ मिसिंग है ना। तो वो जो मिसिंग पार्ट है ना, वो हम कहते हैं समवेयर इट इज अ हीलिंग जर्नी दैट नीड्स टू बी डन। और when that healing is done, hopefully inshallah you will see that there is a positivity, that a new window opens, a new branch will grow inshallah. So coming back to what, अब हम आलू वाला वो कब करते हैं, चाहे वो आलू करें या कोई चीज है, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो हमारे दिल में आवाज है या जो वो चीज है जो मैं किसी और से कहना चाह रही हूँ। आपको मैंने कल बताया द माइंड कैन बी ट्रिक्ड, इट जस्ट नीड्स अ रिलीज, राइट, इट नीड्स यू टू टेक इट आउट। तरीका क्या होता है कि अब जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत सी मदर्स को मैंने देखा है वो जाते हैं किचन में और बड़ बड़ कर रहे होते हैं, अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, राइट, क्योंकि वो निकालना है ना। अब वो कैसे पता चलेगा, या तो बर्तन जोर से रखे जाएंगे तो पता चलेगा, या जब बर्तन धो रहे हैं तो खड़ 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 आवाज आ रही है मुंह से, लाइक ओ ओ लुक्स लाइक गुस्सा आ रहा है। तो उस चीज को थोड़ा सा हम कहते हैं ना क्यूट करने के लिए और थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, और आपके आपका पर्सनल जोक हो गया ना ये, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है भाई आंटी पे, ठीक है, आंटी ने आपको कुछ बोला है और आपको अब आप जाओ किचन में, आप बोलो चलो भाई आज तो फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। पहले आपने निकाला आलू, फिर आपने कहा, सोचते जाए, आलू काटते जाए, काटते जो बोलना है, जो बोलना है, बेचारा पूरा आलू काटो काटो, छीलो छीलो छीलो। कल मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब हम वो कंट्रोल करते हैं ना, वो वाला टेयर द पेपर वाला, फिर आपके पास चॉइस है। ये सब कट गए, आलू फ्रेंच फ्राइज बन गए, जितना बोलना था। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आंटी खामोश हो जाएगी, आंटी बोलती रहेगी, क्यों, क्योंकि ये आंटी, उसके इख्तियार में ये है कि वो अपनी जबान ऐसे इस्तेमाल करे। आपके इख्तियार में क्या है, आपके इख्तियार में ये है कि आप अपने माइंड को बोलो वो ऐसी है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं क्या करूंगी, मैं बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, चलो चुप करो, जो आपको बोलना है बेचारे पूरे आलू के छिलके पे निकालो, अच्छे से फ्रेंच फ्राइज बना, आप बोलो बा, वो करें अपना बड़बड़, मैं खाऊंगी अपने फ्रेंच फ्राइज, या आप बनाओ आलू के कबाब, या आप बनाओ कटलेट्स, जो बनाना बनाओ। बट द आइडिया इज व्हाट, दैट दिस आलू इज ओनली एन एग्जांपल, यू कैन डू द सेम थिंग विद एनीथिंग, राइट। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हमने आलू क्यों लिया, आलू इज अ क्यूट वेजिटेबल, एक बड़ा सा जायंट पोटेटो है, क्या ना काउच पोटेटो वाला आइडिया, कि बैठे रहते हैं आराम से और बोल रहे हैं दूसरे को हुक्म चला रहे हैं, वो एक काउच पोटेटो, खुद तो कुछ नहीं करता, बस बोलता रहता है। तो उस कॉन्सेप्ट से आलू को लेते हैं कि यू इमेजिन दैट पर्सन एज अ जायंट पोटेटो, वो बोल रहा है, फिर हम कह रहे हैं अच्छा अब आपने क्या करना है इस पोटेटो के साथ, तो आप कह रहे हैं मैं भाई अब मेरे कंट्रोल में आ गया ना, मेरी मर्जी, चलो बनाओ कबाब निकालो, राइट। जब आप एक दफा बड़ करके निकाल लेते हो ना, तो खुद ब खुद आप देखोगे एंड में आप हंस रहे होगे, आप बोलोगे यार छोड़ो, वो ऐसी है, मैं चलो अपने फ्रेंच फ्राइज एंजॉय करूं, या मैं चलो अपने कबाब एंजॉय करूं, राइट। बट व्हाट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू रिलीज। फिर क्या होता है, जब थोड़ा सा आपका ये जो भर गया ना, ये जब रिलीज थोड़ा सा क्लियर कर देता है आपके माइंड को, जब आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाता है फिर आप सही सोचते हो। उस वक्त क्या, ये जो सारा एक्टिविटी है ना वो आपके माइंड को क्लियर करने के लिए है। जब क्लियर हो जाएगा देन यू रियलाइज, देन यू टेक अ डिसीजन। तो होता है ना, कभी होता है ना गुस्से में आपको लगा "हाँ, इसको मार दूंगी मैं, मेरा दिल चाहता है ये मर जाए"। फिर बाद में जब थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो जाता है ना, फिर आप अपने आप यार बड़ी हो गई है, वो टाइप है, उनका तरीका है, और है ये ऐसे, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे भी ऐसे करें। आप चाहोगे कि आपके बच्चे आपके बारे में ऐसा बोले, नहीं ना।
तो फिर आप यू डिसाइड टू चेंज। बट गुस्से में दिमाग नहीं चलता, तो गुस्सा किस पे निकालेंगे? आलू के छिलके पे निकालेंगे, फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। जब माइंड क्लियर हो जाएगा, फिर अपने आप से बोलेंगे ओके, सो ट्राई दिस लिटिल टेक्निक एंड देन गिव मी सम फीडबैक। उसका थोड़ा सा थेरेप्यूटिक वर्जन, जो आप वो कहते हैं नॉन थेरेपी की, थेरेप्यूटिक वर्जन ये है कि हम क्लिनिक में भी हम ट्राई करते हैं, बच्चों के साथ भी बड़ों के साथ भी। इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, I'll ask you to do the same thing. Not Alu, but this time I will say, okay, close your eyes and imagine. Especially मैंने आपसे कहा वो लोग जिनका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, जो बहुत बचपन से कोई पेन कैरी कर रहे हैं, चाहे इट वॉज अ लॉस ऑफ अ पेरेंट, चाहे it was some sort of abuse, चाहे it was a very difficult family environment, dysfunctional family environment, right? मैं इसी पे 10 बातें कर सकती हूँ कि किस तरह डिस्फंक्शनल, मतलब अजीब अजीब फैमिली इन्वायरमेंट्स हो रहे हैं आजकल। बट पॉइंट हियर इज दैट इफ यू हैव नाउ टुडे बिकम एन एडल्ट, बट इफ यू हैव सम पेन दैट यू आर कैरिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, राइट, और आपको ये फीलिंग होती है कि उस पेन की वजह से या उस तकलीफ की वजह से मेरा बचपन जाया हो गया, या मैं एक बच्ची थी, और वो एक होता है ना कि आई नेवर एंजॉयड माई चाइल्डहुड, आई नेवर वॉज अ चाइल्ड, आई नेवर कुड बी अ चाइल्ड, राइट। तो वो अगर आपको लगता है ना यू आर मिसिंग एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में जिसको हम कहते हैं इनर चाइल्ड, राइट। ब्यूटीफुल टॉपिक, आज कभी मिलेंगे तो इस पे इंशाल्लाह काम करेंगे। तो हम सब के अंदर अपना एक बच्चा है ना, हम सब चाहते हैं। हम आज मैं उसी बच्चे को आपके निकालना चाह रही हूँ कि आपके अंदर का बच्चा कैसे खुश होता है। तो अगर आपके अंदर का बच्चा बचपन से किसी तकलीफ में है, तो उसको ये फील होता है कि मैंने अपने आप को कभी एंजॉय ही नहीं किया, राइट। तो वन ऑफ द टेक्निक्स दैट वी यूज इज लाइक ओके, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कि आप आज 4 साल की हो या 5 साल की, जब भी आपको वो तकलीफ याद आता है, और मैं आपसे कहूंगी कि अच्छा आप अपने आप को क्या बोलना चाह रही हो, अभी तो आप बड़ी हो गई हो ना। तो मिसाल के तौर पे मैं कहूंगी ओके, आई डोंट नो, फरा, फरा यू आर 20 टुडे, बट इफ यू मीट योर 6 year old फरा, है ना, आप अपने अंदर अपने माइंड में वो 6 साल वाली फरा को मिलो, और फरा डरी हुई है, और फरा जो है वो रो रही है क्योंकि एक तकलीफ में है, तो आप छोटी फरा को क्या बोलना चाहोगे? अभी तो आप बड़ी हो गई हो ना, आप कैसे उसका ख्याल रखना चाहोगे? आप उसको क्या बोलना चाहोगे जो हो सकता है उस जमाने में उनके बड़ों ने नहीं बोला? शायद नहीं बोला क्योंकि उन्होंने कभी एहसास ही नहीं किया कि आप तकलीफ में थी, शायद नहीं बोला क्योंकि वो खुद तकलीफ में थे, राइट। तो हम उनको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी फरा छोटी फरा का तो ख्याल रख सकती है क्योंकि उसके अंदर ही रहती है, राइट। व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टेल योर इनर चाइल्ड? और बहुत बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटीज हैं इनर चाइल्ड की, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने ये छेड़ा सिर्फ इसलिए बिकॉज इफ देर आर पीपल इन दिस ग्रुप हु फील दैट मेरा चाइल्डहुड हीलिंग रहता है या मेरा चाइल्डहुड पेन रहता है, तो one of the techniques is that you go back to your inner child and you can start healing it, right? तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने बताया है सिर्फ आपके लिए कि हर चीज का आंसर है, लेकिन अगर आप इफ यू चूज टू कंटिन्यू टू सफर सफर सफर, तो फिर ये भी आपकी चॉइस है। हाँ, आप ये कह सकते हो मुझे पता ही नहीं था कि हम ये भी कर सकते हैं थेरेपी में, तो आज के बाद आपको पता चल गया। लेकिन अभी इफ यू डिसाइड दैट यू वांट टू कंटिन्यू, देन अगेन इट इज योर चॉइस, राइट। क्यों मैं आपको बार बार ये सब कुछ बोल रही हूँ? क्योंकि ये इमेज में जा रही हूँ, आप कहीं अपने माइंड में फिट कर दो, राइट। ये वही है जो फर्स्ट डे से मैं आपसे कह रही हूँ। इतनी रिसर्च हुई है इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा पे कि अगर किसी भी वजह से आपके रूट्स में कोई प्रॉब्लम रहा, या आपकी जनरेशन में कोई प्रॉब्लम रहा, और आप कोई तकलीफ अपने अंदर इस वक्त महसूस कर रही हो, अगर आप उसकी हीलिंग सही तरीके से नहीं कराओगे, तो देर इज अ चांस, देर इज अ रिस्क, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू ट्रांसफर दिस टू योर चिल्ड्रन। वुड यू लाइक दैट? मैं तो कहती हूँ कि आज से जो 20-25 साल पहले जमाना था ना, वो फिर भी ऐसे था कि इट वाज सिंपल। चले गए, बड़े हो गए, बहुत सारी तकलीफ, हमारे नाना परनाना बड़े बहुत तकलीफों से वो लोग भी गुजरे हैं,
उनका लेवल ऑफ तकलीफ ऑब्वियसली अलग था, ये अलग है, बट बिकॉज द वर्ल्ड वॉजंट वेरी competitive, द वर्ल्ड वॉजंट वेरी फास्ट, वो फिर भी चल गए। लेकिन जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों को सपोर्ट ना करें और अगर उनको स्ट्रेंथन ना करें, तो आई फील दैट द वर्ल्ड इज वेरी हार्श नाउ। तो उनकी अपनी चैलेंजेस तो आएंगे, उनके अपने परेशानी आएंगे, उनके जमाने के लिहाज से अल्लाह उनके ऊपर इम्तिहान भी देगा, क्योंकि वो तो कहा है। तो अब मैं अपना इम्तिहान भी उनके ऊपर क्यों डालूं? आप समझ रहे हैं मेरी बातें? कि आपके पास एक चॉइस है। कल मैंने एक वीडियो डाली है ना छोटी सी, उसको देखो। आपके पास एक चॉइस है कि यू कैन चेंज एंड ब्रेक द साइकिल। ये हम नहीं कह सकते मेरे बच्चे को कभी कोई तकलीफ ना हो। अरे, तो आप तो ये कह रहे हो कि अल्लाह हट जाए उसकी जिंदगी से। अल्लाह तो खुद कह रहे हैं कुरान में, मैं लूंगा इम्तिहान। तो ये दुआ नहीं होती है। हमारी कोशिश क्या होती है? हमारी कोशिश होती है कि आप उस इतना उसकी स्किल बिल्डिंग करो कि वो कोप कर सके अपने चैलेंजेस से, वो सही चॉइसेस कर सकें, वो सही डिसीजन ले सकें। तो ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब आप सही डिसीजन लो, राइट? इफ यू आर कैरिंग समथिंग एंड यू डिसाइडेड आई वांट टू सॉर्ट दिस, अगर आप बोलोगे कि मिसाल के तौर पे जो भी प्रॉब्लम्स मेरे पास में रहे हैं उसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आई है, या उसकी वजह से मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाती, या उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, जो भी आप आइडेंटिफाई करो, या ये मेरा थिंकिंग पैटर्न ऐसा है कि मैं पहले ही नेगेटिव सोचती हूँ, या आप बोलोगे मैं बहुत सोचती हूँ, याद है अगर मगर वाली भी होता है कि हर चीज में फिक्र फिक्र फिक्र, बट टक 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 दिमाग चलता रहता है, यूं यूं यूं। वट एवर इट इज दैट यू आइडेंटिफाई, देन यू आर लाइक यार मैं नहीं चाहूंगी मेरी बेटी ऐसे हो। है ना? कितने लोग मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं, यही कहते हैं कि भाई मैं तो ऐसी थी, मैं नहीं चाह रही मेरे बच्चे ऐसे, राइट? तो बच्चों को तो ठीक करेंगे, लेकिन आपके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो दो आर द रीजंस। लाइक क्यों? क्योंकि ये बात याद रखना जो ग्रीन में है, कि जहां पर आप इरादा भी करो ना, अल्लाह कितना प्यारा है, अल्लाह कहते हैं ना नियत के नंबर भी दे रहा है। गुना तो बाद में, आप अच्छी चीज की नियत करो, काम शुरू हो गया, समझो। तो बिल्कुल उसी तरह ही है कि आप नियत करोगे, आप इंटेंशन करो कि दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन, दिस इज समथिंग आई नीड टू इम्प्रूव, दिस इज समथिंग आई नीड टू चेंज, राइट अबाउट मी। जैसे ही आप नियत करोगे, आप समझो आपका आधा काम हो गया, राइट? क्यों? क्योंकि अब आपकी इंटेंशन चेंज हुई, उसकी वजह से आपके अंदर की एनर्जी चेंज होगी। जब अंदर की हम कहते हैं पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, तो खुद ब खुद आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा। जब चेंज होगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप विजडम में आओगे, विजडम होता है आपकी चॉइसेस, राइट? आपका इंटेलिजेंस, आपका डिसीजन मेकिंग, और वो तमाम चीजें आपका विजडम है, वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करोगे। कैसे करोगे? बिल्कुल उसी तरह कि अब आपका अंदाज बदल जाएगा। इसमें लिखा है ना एवरीथिंग, पढ़ेगा कोई? क्या लिखा है? चेंज द चेंज द वे यू सी एवरीथिंग। है ना? टेढ़ा देखते रहोगे तो देखते ही रहोगे, आप कन्विंस हो जाओगे आहिस्ता आहिस्ता कि वो वैसे ही है। इफ यू चेंज द perspective, इंशाल्लाह इंशाल्लाह योर थॉट प्रोसेस विल चेंज एंड योर वे टू टेक डिसीजंस विल चेंज। तो पूरी हमारी कोशिश इस इन दो जुमलों पे है, रिलीज रिलैक्स, रिलीज रिलैक्स। रिलीज कैसे करना है आपको मैंने बताया। पहले पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर अपना थॉट प्रोसेस चेक करो, फिर थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चैलेंज करके चेंज करो, समझ लो आपके इख्तियार में क्या क्या है और दूसरा आपके साथ क्या कर रहा है, राइट? एंड देन हम कहते हैं एक बाउंड्री बना लो। फिर भी अगर बहुत दिल भरा हुआ है तो वो जो अंदर है उसको निकालना है। सम पीपल राइट, they write journals. I remember that I used to be, जब टीनेजर में मैं लिखती तो थी, लेकिन I would love to not just write but tear it. वो जो मजा आता था ना फाड़ने में, एक लगता था कि वो सब जो फ्रस्ट्रेशन था ना वो निकल गया। So I would love to, and that was when I was a teenager. So I never studied psychology, but I guess अंदर दिमाग में कहीं था कि ये सिर्फ लिख के मजा नहीं आता। वो जो बहुत सारे लोग डायरी लिखते थे, लिख के फाड़ने में जो था कि गुस्सा है मुझे, तो वो सब इस पे निकला। तो अब हम बच्चों को सिखाते हैं, बाकायदा एंगर मैनेजमेंट की एक टेक्निक है, वेर यू से टेयर टेयर टेक्निक, राइट? सो यू, कल मैंने आपको बताया, यू टेयर इट एंड देन यू लुक एट इट एंड यू नाउ व्हाट डू आई डू विद ऑल दीज? So whether it is your big giant potato and French fries, whether it is your tear paper, whether it is writing journal,
whether it is watching some, I don't know, comedy, whether it is that smash activity I told you, whether it is some people love to do doodling or coloring or मंडाला, आपने देखे होंगे ना आजकल बड़ा फैंसी हो गया मंडाला आर्ट और वटेवर। उसका एक पर्सनली मुझे किसी ने गिफ्ट किया और मैं बड़ा यूज करती हूँ आजकल जब टाइम मिलता है। बट सेम डूडल आर्ट पे एक बुक उन्होंने निकाली है, अस्माए हुस्ना की, बड़ी अच्छी बुक है। सो एक एक अल्लाह का नाम है, उसके अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप वो भी पढ़ते हो, आप उससे थोड़ी स्ट्रेंथ लेते हो, एंड देन यू कैन डू दैट। सो फॉर दोज ऑफ यू हु लाइक डूडलिंग, व्हाई नॉट, इस तरह भी कर सकते हैं। द आइडिया इज जस्ट द सेम थिंग, कि जब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा फिर आप सही सोच पाओगे, राइट। जब जब सिर्फ मिसाल के तौर पे काट काट के आलू बना के दिल नहीं भरेगा। जब जब आप क्लियर हो जाओगे, खा लोगे फ्रेंच फ्राइज, जब पेट भर जाएगा, दिल सुकून, फिर आप बोलोगे यार हाँ, देन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, राइट। छोटी बड़ी हो गई हैं, अब वो बोल रही हूँ उनको तो मैं नहीं बदल सकती, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर आप थोड़ा क्लियर सोचने लगते हो, राइट। फिर आप थोड़ा अंडरस्टैंड करने लगते हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही है। सो जस्ट अ फ्यू मोर एंड देन वी कैन डिस्कस थिंग्स। तो हमने बात क्या की थी, हमने बात अभी थोड़ी सी बात की इनर चाइल्ड की, कि अगर अगर आप में से कोई ऐसा है या कोई फील करता है या किसी को जानते हो जिसका पास्ट ऐसा रहा है, where they feel that as a child they struggled, as a child they were not given that love, attention, warmth, understanding, support from their parent। ये बात है इनर चाइल्ड की, कि बचपन मेरा जाया हो गया क्योंकि मुझे ये तकलीफ थी और मेरे आसपास के जो लोग थे वो नहीं समझ सके, या तो वो ही मेरी परेशानी का बायस थे या वो मुझे सपोर्ट नहीं दे सके, राइट। तो इन दैट केस हम कहते हैं हमें आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी है। और इनर चाइल्ड की हीलिंग का जो पहला स्टेप है वो यही है कि आप इमेजिन करो कि आप बैठे हो और आप छोटी बच्ची हो और अभी आप बड़ी हो गई हो। आप बड़ी फरा छोटी फरा को क्या बोलना चाहेगी कि उस वक्त नहीं था कोई, आज मैं आपके साथ हूँ, राइट। और उसी से रिलेटेड बात आती है कि हाउ डू यू रीपेरेंट योर सेल्फ, राइट। कल कल ही इत्तेफाक है, इतनी मजे की मजलिस मैंने सुनी, मेरा दिल खुश हो गया। कभी कभी होता है ना, यू लर्न सो मच। थर्सडे नाइट था, इसाले सवाब की मजलिस थी और इट वाज अबाउट लूजिंग अ पेरेंट, राइट। और वो मौलाना साहब इतना अच्छा समझा रहे थे कि हम कहते हैं कि ठीक है दीन में पढ़ा हुआ है कि पेरेंट का एहतराम करें करें करें, लेकिन समटाइम्स देयर हैव बीन पेरेंट्स इन इन पीपल्स लाइफ हु हैव गिवन देम तकलीफ, है। ऐसे पेरेंट हैं, जैसे कल मैंने आपको उस बच्चे की बात बताई जिसके जिंदगी 10 साल निकल गई, ये सुनते सुनते कि यार तुम कुछ भी नहीं हो, राइट। तो अगर एक पेरेंट है जिसने मुझे तकलीफ दी है, आज मैं बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं पूरी जिंदगी ये देखते हुए बड़ी हुई हूँ कि उसने मुझे तकलीफ दी। एंड एंड लाइक वी वर्क विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिवोर्स फैमिलीज एंड सेपरेशन या whatever, राइट। तो तकलीफ मुझे मालूम है पेरेंट देते हैं बच्चों को। तो अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब पेरेंट मिसाल के तौर पे उसकी डेथ हो गई है, राइट। तो अब आपके ऊपर है ना, आप रियलाइज करते हो दैट डू आई रियली मिस दिस पेरेंट। इतने सारे लोग मुझे मिले, मैंने शायद इस क्लास में नहीं दूसरी क्लास में कहा है कि समटाइम्स यू मीट और आप दुआ करते हो किसी की कि ये मर जाए तो जिंदगी में मुझे सुकून मिलेगा, और फिर वो मर जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर आपको सुकून मिलता है। अक्सर क्या होता है, अक्सर आप गिल्ट में चले जाते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग बीइंग हैप्पी एंड रिलीव, हालांकि उसने जिंदगी भर आपको तकलीफ दी है। कितने केसेस हम औरतों के साथ डील करते हैं जिसके खुदा न खास्ता हस्बैंड अब्यूजिव था, राइट, और इतना अब्यूजिव था, और फिर वो दुआ करती है मर जाए मर जाए मर जाए, और एक दिन वो मर जाता है। अब वो थेरेपी में क्यों आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो बोले मेरी मेरी वजह से मरा है। अरे भाई आपकी वजह से क्यों मरा, नहीं मैंने दुआ की थी वो मर जाए। इतना इंसान, मैं कहती हूँ इतनी ब्यूटीफुल चीज है इंसान। और दो इमोशन है जो सबसे मुश्किल है किसी भी थेरेपी में ट्रीट करना, एक गिल्ट और दूसरा ग्रीफ। दोनों ऐसे, इतना वजन है दोनों इमोशन का। और अगर कोई मर गया है तो, और आपको गिल्ट है, और मर गया तो ग्रीफ भी है, इमेजिन, ये दोनों जब मिलते हैं एक साथ। तो खैर कहने का मकसद है कि मैं कहाँ आ गई, मैं आपको ये कह रही थी कि अगर अगर आपका कोई पेरेंट ऐसा है जिसने आपको तकलीफ दी, अब हमारा जो रिलीजन है वो कहता है कि भाई आपने तो पेरेंट का एहतराम करना है, उफ तक नहीं बोलना है, ऐसे ही है ना।
इतना सिखाया, मतलब लीस्ट, वो कहते हैं ना लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, लास्ट पॉइंट क्या है कि आप उफ करो उनके सामने। उफ तो हम ऐसे ही करते रहते हैं। तो वो मौलाना साहब यही कह रहे थे कि व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन द टू, एट द एंड ऑफ द डे रिलीजन हैज गिवन मोर वेट टू योर पेरेंट। चाहे वो बहुत बुरे भी थे, लेकिन फिर भी कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि स्टिल उनको याद, है ना, स्टिल उनके लिए खैर की दुआ करें। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो बड़ा मुझे कल बहुत मजा आया मजलिस सुन के, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वाकई इट इज डिफिकल्ट। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे, जिस अकीदे में हम हैं, जिन वैल्यूज पे हम यकीन करते हैं, थैंक गॉड वी हैव दीज वैल्यूज, थैंक गॉड वी हैव अ बिलीफ सिस्टम, थैंक गॉड वी हैव द अल्टीमेट। है ना, क्या हमें पता है एंड में तुम्हें उनके सामने खड़ा करना है ना। मैंने कहा अल्लाह में ठीक है, आप मुझसे पूछे मेरा हिसाब किताब, लेकिन पहले जरा इन 4-5 लोगों को बुलाएं, इनको भी खड़ा करें, मैं भी सुनना चाहती हूँ। राइट, सो आई नो एट द एंड ऑफ द डे देयर इज समथिंग दैट आई कैन फाइनली, कटहरे में होगा, हमें भी मौका मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। राइट, इतना आदिल तो खुदा है कि जब मुझे बुला रहा है, मेरे सवाल जवाब पूछेगा, तो अगर हमसे भी कुछ हुआ है तो आप हमसे भी पूछे ना। राइट, सो पॉइंट इधर मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर अगर पेरेंट ने भी आपको तकलीफ दी है, पेरेंट ने आपको बचपन में सपोर्ट नहीं किया, पेरेंट ने आपको जो है वो आई डोंट नो, द रूट ऑफ योर पेन इज दैट, राइट। तो अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी हीलिंग उस वक्त कंप्लीट होगी व्हेन यू प्रैक्टिस समथिंग विच इज लिटरली कॉल्ड रीपेरेंट योर सेल्फ। लिटरली उसका नाम ही है। ठीक है, ये अगेन उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनकी इनर चाइल्ड अभी भी सैड है, अभी भी डिस्टर्ब है, अभी भी समझो खो गया है, अभी भी लोनली है, अभी भी ये फील करता है कि मेरा मेरा बचपन रह गया। रीपेरेंट योरसेल्फ क्या है? रीपेरेंट वही है कि बड़ी फरा छोटी फरा को क्या कहना चाह रही है, क्या चीज है जो उसकी बचपन की मिस हुई। हमारा इनर चाइल्ड कभी नहीं बढ़ता, कभी भी नहीं पढ़ता, हमेशा वही बच्चा है जो बड़ा हो रहा है ना, तो वो अंदर ही है। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं ना, मैं आप कितने खुश होते हो बच्चों के दरमियान, कितने बड़े भी हो जाओ, हम कितने खुश होते हैं व्हेन चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन लाफ एंड चिल्ड्रन कम एंड हग यू, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विथ योर इनर चाइल्ड। तो इफ देयर आर सम थिंग्स, फिर आपने देखना है कि अच्छा आप क्या चीज है जो आपने मिस की अपने चाइल्डहुड में, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टीच योरसेल्फ। क्या आप यू नेवर गॉट दैट लव अटेंशन वार्मथ, वो बेसिक नीड है। या आप बोलो कौन, कितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं हमारे पेरेंट ने भी कभी सिखाया ही नहीं, या कभी हमारे घर का ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था कि एक हेल्दी बाउंड्रीज हो, एक रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट हो, एक इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे हैं लोग जिनके घर में बस ये जो है ना, फिल्टर भी नहीं लगा हुआ, कुछ भी बोल रहे हैं। पर अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो जहाँ आपने अपने बड़ों को ही सुना है कि हर किस्म के अल्फाज यूज करें, हर किस्म के इमोशनल आउटबर्स्ट हैं, फिर you grow up and you realize that I did not get that in my childhood, that part I never learned, right? So if you identify any such thing, then maybe as an adult, बड़ी फरा छोड़ी फरा को कहिए ओके, वो चीज हमने नहीं की, अब यू विल रीपेरेंट योर सेल्फ, यानी यू विल रीट्रेन योर सेल्फ, यानी यू विल टीच योर सेल्फ नाउ, राइट। आपका काम क्या है? आपका काम है आइडेंटिफाई करना। अगर आप खुद से अपने आप को ये टीच कर सकते हो, बेहतरीन। अदरवाइज दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हेल्प सीक, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू गो फॉर थेरेपी फॉर। कि इतना वेट आप कैरी कर रहे हो, क्योंकि क्यों मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बिकॉज अगर यू डोंट फिक्स योर सेल्फ, you will transfer this emptiness, this baggage, this gap to your next generation, right? तो ये इतनी सारी मेहनतें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपना ख्याल है। अपना ख्याल क्यों है? क्योंकि ये आपके इख्तियार में है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो आप अपना ख्याल रखो, आप अपने ऊपर काइंड, हम कहते हैं ना सबको आप काइंडनेस सिखाने बैठे हो, आर यू काइंड टू योरसेल्फ? हाँ, आर यू जेंटल टू योर सेल्फ? आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ? आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? तो ये जो वर्ड काइंड और कंपैशन है ना, वो हम अपने लिए भी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आज फ्राइडे है तो मैं चाहूंगी हम थोड़ा सा टाइम पे खत्म करें, तो ये इंशाल्लाह 2-3 टेक्निक्स हैं एंड देन वी विल एंड अप मे बी अ फ्यू मिनट्स अर्लियर। एनीवे, सो कमिंग टू दिस, कि भाई कहाँ से शुरू करूं मैं अपने आप के ऊपर काइंड होना। या मिसाल के तौर पे अगेन, like all the examples I gave you today, maybe it can make you a little sad. Maybe you can feel that
आपके अंदर जो छोटी सी बच्ची है वो कितनी तकलीफ में है, कितनी कितनी डरी हुई थी, या बचपन में हम कह सकते हैं ना, वो इतनी डरी हुई थी, इतनी अकेली थी। तो कैसे आप उसको हील करो? या अभी आप कहोगी मुझे कि आई फील सो अलोन, सो लोनली, कुछ समझता नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। तो आपको अगर ये फील हो रहा है, तो आई ऑलवेज से दैट एक ब्यूटीफुल मेथड, आई लव द बटरफ्लाई हग। मैं कहती हूँ सबसे पहले तो हर इंसान को, और मदर्स को तो डेफिनेटली अपने आप को सुबह खड़े होके वाकई शाबाश देना चाहिए, राइट? वी प्रैक्टिस द बटरफ्लाई हग अ लॉट इन द ऑर्फनेज, अ लॉट। क्योंकि ऑर्फन बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं, खासतौर पे ऑर्फनेज, हर इंसान चाहता है ना कि आई गेट द लव, आई गेट द अप्रिसिएशन, आई गेट द वार्मथ, राइट? बट बट आपके पास 200 300 बच्चे हैं ऑर्फनेज में, किसके पास वो है कि अनलेस हम वो रखें। आपको पता है दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका ऑक्यूपेशन ये, प्रोफेशन उनका ये है कि वो हग करते हैं। You pay, you go there and you lie down on a couch or whatever. Obviously यहाँ नहीं, गोरे कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, उसका काम ही है हग। वो हग करते हैं, कडल कडल थेरेपी या हग थेरेपी, राइट? तो हमने कहा चले वो तो हम नहीं कर सकते। इफ यू हैव योर चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई वी लव, प्लीज इफ यू हैव योर चिल्ड्रन, हग देम, किस देम, लव देम, एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि ये जो हगिंग है ना, अल्लाह ने इसके अंदर, हग हग गिव्स यू प्लेजर, जॉय, राइट, हैप्पीनेस। द मिनट यू हग, द हैप्पी हार्मोन इज रिलीज्ड, राइट? तो आप इसीलिए छोटे बच्चों को हग करने में कितना मजा आता है। I had a friend who used to say, "Oh my God, I love my nephew. I feel like putting him in a blender and making juice." I said, "बाबा उसकी माँ को मत बताना, right? This sounds like abuse." But हर इंसान का जॉय एक्सप्रेस करने का तरीका ही अलग है। तो वो कहती है, आई लव टू मेक इट, यू नो, उसका नाम अली था, इज लाइक आई लव टू मेक अली जूस। चले, आपका तरीका अलग है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बटरफ्लाई मेथड। सो बेसिकली learn to value yourself, and if you feel that भाई आपके पास कोई नहीं है आपको हक देने के लिए या cuddle करने के लिए या kind of appreciate करने के लिए, then start by really doing it yourself, and literally you go like that and you literally hug yourself, right? For those of you who are interested, आजकल बड़ा trendy method, evolving method है, which is called tapping। टैपिंग थेरेपी है बाकायदा, राइट? टैपिंग में बिल्कुल आप ये करो तो कि अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आप टैप 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 करो। टैप स्टिमुलेट करता है आपके नर्व्स को, आपको रिलैक्स करता है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगेन you're connecting with yourself, you're telling yourself कि अगर कोई भी नहीं है तब भी मैं अपने लिए हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, राइट? और फिर इसके बाद हम कहते हैं कि आपका दिन, अल्लाह करे कि सब चाय पीते हो, क्योंकि मैं तो चाय पीने वाली हूँ, बट दे आर पीपल हु डोंट ड्रिंक टी। सो लेट्स स्टार्ट बाई पीपल हु ड्रिंक टी, क्योंकि हमारे कोर्स का नाम ही पॉजिटिव साइकोलॉजी है, तो हमने कहा पॉजिटिविटी, हम टी से शुरू करते हैं। कि भाई चलें, आप उठे पूरे दिन के बिजी 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 बिजी, उसमें फिर भी आई अज्यूम दैट होपफुली यू हैव वन कप ऑफ टी। एंड आई नो मैनी मदर्स वो कहते हैं कि सुबह तो बहुत बिजी होता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, बच्चे चले जाते हैं, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं अपनी एक चाय पीती हूँ। मोस्ट ऑफ देम, नॉट एवरीबडी बट मेनी ऑफ देम से कि भाई वो मैं फिर अपनी एक चाय पीती हूँ। तो वो जो चाय पीती है ना, उसका फायदा उठाएं, और नेक्स्ट टाइम यू ड्रिंक योर चाय यू लाइक, दिस इज माय पॉजिटिविटी, राइट? सो थोड़ी देर के लिए, कितनी देर लगती है एक चाय बनाने में या वो करने में, बट इफ यू आर माइंडफुल, इफ यू आर केयरफुल कि हाँ मैं ये डाल रही हूँ और मैं अपने लिए कर रही हूँ, है ना? इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज हैं इसमें कि आप याद रखो दैट even if there are so many mothers who tell me कि मैं सबका ख्याल रखती हूँ, इसको देखो उसको देखो, इसकी दवाई उसका लंच ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी विटामिन टेबलेट पड़ी है, कोई मुझे नहीं पूछता कि आपने खाई या नहीं खाई, है ना? सारा दिन कोई नहीं पूछेगा, मैं सबको पूछती हूँ। आई अंडरस्टैंड मम्मी, आई अंडरस्टैंड, बट here, right there for myself, I will take care of myself, right? लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस ही ये बनता है, ओ कोई मुझे नहीं पूछता, कोई, तो वाकई कोई नहीं पूछेगा। बट इफ यू स्टार्ट टेकिंग एंड यू काइंड ऑफ एम्पावर योरसेल्फ पॉजिटिविटी, तो होपफुली आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो थोड़ी सी आपको इनर स्ट्रेंथ मिलेगा। क्योंकि अगेन मैंने ये कहा ना कि दुनिया बहुत आसपास में, आई डोंट वांट टू से इट्स ब्लैक, although this picture shows that, लेकिन मैं कह रही हूँ there is darkness, there is so much negativity, there are so many negative vibes, there हर किस्म के लोग, हर किस्म की बातें, हर किस्म के मशवरे। लेकिन आप
आपके हाथ में आपका इख्तियार है ना। सही है, बहुत सारे लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम वो लोग नहीं है जो कहते हैं जॉब को छोड़ो बस मैं नहीं। लेकिन स्टार्टिंग विथ मी, स्टार्टिंग विथ वेयर वेयर डू आई स्टार्ट टेकिंग केयर। कल कल मैंने आपसे कहा था ना कि जब हम आर्ट करते हैं तो हार्ट की स्पेलिंग के अंदर क्या आता है? क्या आता है? HEART। हार्ट की स्पेलिंग के अंदर आर्ट है। तो डोंट थिंक कि भाई मुझे आर्ट नहीं आता, आपके हार्ट में आर्ट है। इसका मतलब यू अलाउ योर हैंड एंड हार्ट टू कनेक्ट, तो कुछ पेपर पे आएगा। इट डजंट हैव टू बी ड्राइंग, इट्स बेसिकली अलाउइंग योर हैंड एंड हार्ट टू कनेक्ट एंड देन रिवील ऑन अ पीस ऑफ पेपर। उसी तरह याद रखना, मेंटल हेल्थ की स्पेलिंग में फर्स्ट टू लेटर्स में क्या है? मेंटल के वर्ड में फर्स्ट टू लेटर्स क्या है? रिमेंबर, मेंटल हेल्थ ऑलवेज स्टार्ट्स विथ मी, ऑलवेज। जैसे और हम लोग के खाम मेंटल हेल्थ में बोलूंगी और मुझे यकीन है कि आप सबके दिमाग में आ गया डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, लड़ाई ब्रो। हालांकि मेंटल हेल्थ अगर मैं बोल रही हूँ फिजिकल हेल्थ तो बिल्कुल ऐसी हो गया मेंटल हेल्थ। लेकिन जैसे ही मैं फिजिकल हेल्थ बोलती हूँ लोगों के दिमाग में आता है वाह एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, अच्छा ख्याल रखना, पॉजिटिव बातें आती है ना। लेकिन मेंटल हेल्थ सुन तो हालांकि ऐसा नहीं है। मेंटल इलनेस के बारे में हाँ आप कह सकते हैं बीमारियां, ये मेंटल हेल्थ है ना। लेकिन हमने अपने माइंड में किया तो मेंटल हेल्थ इज टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द फर्स्ट टू वर्ड्स आर मी। तो मेंटल हेल्थ बिगिंस विद मी टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। तो आई हैव फ्यू मिनट्स, मैं आपके साथ दो स्टोरियां शेयर करना चाह रही हूँ, राइट। सिर्फ सुनो, उसको हजम करो, देखो अगर आपको समझ आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। शायद ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन जो एग्जाम्पल या जो मेन मकसद मैं देना चाह रही हूँ वो मैं समझा रही हूँ आपको इससे। ये कि दुनिया आस पास में आप सबको चुप नहीं करा सकते, ये स्टोरी का मकसद ये है कि आस पास में आप सबको चुप नहीं करा सकते। वर्ल्ड विल गो ऑन। what may be right for you may be wrong for some other person, what may be wrong for you may be right for some other person, है ना। उसका अंदाज ये है, उसका तरीका ये है, उसका थॉट प्रोसेस ये है। आपके इख्तियार में आपकी लाइफ। तो कहानी ऐसी, और मैं आपसे कहती हूँ आप लोग तो बातें नहीं करते लेकिन इन जिंदगी जो है ना वो ये है कि यू लर्न सो मच बाय शेयरिंग, है ना। when you share you learn so much। आप सीखते हो, आप करते हो, और जितना आप सीखते हो आप ये सीखते हो कि आपको कितना नहीं आता। सो द मोर यू लर्न दैट देयर इज सो मच मोर टू लर्न। ये दुनिया है। तो हर रोज इंसान सीखता है और हर किसी से सीखता है। आजकल हमने बच्चों से भी अगर जरा गौर से देखो ना तो बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, राइट। हम नहीं हर बात सिखाते, बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये दोनों ऐसी बच्चों की कहानियां हैं जिनसे मैंने बड़ा सबक सीखा। and it was few, I think the interaction was for less than 5 7 minutes, but मेरी जिंदगी में ये रह गया माइंड में, लाइफ लेसन। So the first is a story of I believe she must be about 15 16 year old, right। और यह है कश्मीर का वाकया एक्चुअली। तो हम गए थे कश्मीर में, बड़ा प्यारा हमारा एक हौजा है बना हुआ है, व्हेन वी हैड गॉन देयर टू डू अगेन साइकोलॉजी ट्रेनिंग विद चिल्ड्रन। सो शाम में बड़ा प्यारा है कश्मीर, आपको पता है सामने ही देयर वाज अ लेक। एंड उन्होंने कहा चलें शाम में हम सब जाएंगे, दरिया पे जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। सो वी वर, आई थिंक हमारी टीम में कोई 4 5 लोग थे और बच्चियां ऑलमोस्ट 50 गर्ल्स थी। अराउंड दिस एज, अराउंड 15 to 18 वाला ग्रुप था। तो हम सब वहां गए और हम सब बैठे हुए थे। अब जब आप लेक पे जाते हो तो वन ऑफ द क्या कहते हैं, शोल जो हम कहते हैं एंजॉय करने के लिए, वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल डू इज दे पिक पेबल्स और उसको जोर से क्या करते हैं पानी में फेंकते हैं, वो सिर्फ रिपल इफेक्ट देखने का, किधर गया, कैसे लगा हमारा निशाना। तो सब ये कर रहे थे, हम भी बैठ के कर रहे थे, हम भी खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। All of a sudden, I noticed that there was a girl, and when she was sitting alone and she was sitting isolated on a rock, थोड़ा दूर लेकिन बिल्कुल अलग बैठी थी बाकी सब। जब मैंने इसको देखा मैंने कहा क्या हो गया कि क्यों अकेले बैठी है। तो सबने कहा इसको छोड़े हैं, ये ऐसी है। मैंने कहा नहीं ऐसी क्यों है भाई, हम भी तो साइकोलॉजिस्ट कीड़ा। मैंने कहा नहीं, ऐसे क्या है। तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर जाके उसके पास बैठ गई, मैंने कहा क्या हुआ आप। तो मैंने कहा आप क्यों अकेले बैठी हो ना। तो उसने कहा नहीं मिस छोड़ दें। नहीं, क्या हुआ, मतलब आप आ जाओ, हम सब है, आप हमारे साथ बैठो।
Then I could see that she was getting extremely emotional. तो I said, क्या हुआ है? फिर then she said, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा, she said कि अब वो कश्मीर है, for those of you who have gone, आपने देखा है कि सब there is lake and there is mountains, और ये जो अक्सर बच्चियां हैं वो गांव से आती हैं, पहाड़ों के ऊपर रहते हैं बेसिकली. शी वॉज सेइंग दैट मेरी जो अम्मी थी वो पहाड़ पे काम करी थी हमारी जमीनों पे, एंड देन शी सेड कि मेरी अम्मी पहाड़ से गिर गई और इस दरिया में गिरी हैं. ठीक है. अब फॉर दोज ऑफ यू हैव गॉन टू कश्मीर, आपको पता है कि जो कश्मीर का दरिया है ना वो बहुत नैरो है. इट्स नॉट वेरी वाइड, इट्स वेरी वेरी नैरो, लेकिन पूरे कश्मीर में जा रहा होता है. तो उसकी जो विड्थ है वो इतनी है, लेकिन उसकी डेप्थ ऐसी है कि अगर कुछ भी चला जाता है तो वो फिर बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता, आप ये समझो. So for a second, when she told me, I understood where she's coming from. But her second dialogue is what I'm trying to teach you here, right? She said, मैंने इतनी दफा इन बच्चों को बोला है कि प्लीज ये पत्थर मत मारो, ये मेरी अम्मी की आरामगाह है. These were her words, right? क्योंकि लाश तो नहीं मिली. तो उसके नजदीक हम सब चाहते हैं ना, जितना भी कुछ भी हो जाए, आपने देखा बॉम्ब ब्लास्ट भी होता है, वो पीसेस मिल रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम अपने प्यारों के, ये एक उंगली भी है तो दे दें, इसको भी हम शरीयत में भी दफनाना चाहिए, बट इट्स लाइक अ क्लोजर. तो उसने कहा मेरे लिए ये मेरी अम्मी की आराम का है. तो मुझे तकलीफ होती है जब ये लोग पत्थर मारते हैं, राइट. एंड शी सेड, मैंने इतनी दफा बोला, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि ये लोग नहीं छोड़ेंगे. तो मैंने ये फैसला किया कि ये चीज मैं नहीं करूंगी. आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Then you cannot कंट्रोल की जो बात मैं आपसे कह रही थी ना, वो मैंने कहानी इसलिए सुनाई आप, कि आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते. इसको इसको चुप कराओ, उसको चुप कराओ, इसको मना करो, ये करिए वो करिए, आप नहीं कर सकते. कभी कभी मुश्किल फैसले करने होते हैं, और मुश्किल फैसला ये है कि मैंने अपने लिए फैसला किया कि देखो, मेरी वजह से तकलीफ ना हो और मुझे तकलीफ ना हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, मेरी वजह से मेरी अम्मी को तकलीफ ना हो, वो अपनी जगह अम्मी है नहीं है अल्लाह जाने, लेकिन उसके लिए तो ये आरामगाह है ना. तो उसने फैसला किया कि भाई, मुझे तकलीफ होती है जब दूसरे इसको तकलीफ पहुंच जाते हैं, तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी माँ को भी तकलीफ नहीं होगी और मुझे भी नहीं हो, मुझे भी तकलीफ नहीं हो, मुझे अपना ख्याल भी रखना है कि मुझे तकलीफ होती है. तो मैं आती इधर हूँ क्योंकि आप लोग आए हैं, मैं आती हूँ इधर बैठती हूँ, लेकिन मैं बैठती हूँ मैं बातें करती हूँ, राइट. मैं बात करती हूँ, मुझे पता है ये मेरी अम्मी के आराम का है. तो फॉर मी इट वाज सच अ ब्यूटीफुल लाइफ लेसन, सच अ ब्यूटीफुल, छोटी सी चीज है, लेकिन उसने उसने वो चीज की कि मैंने डिसाइड कर दिया मैं इनको चुप नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद क्या कर सकती हूँ, मैं खुद ये कर सकती हूँ कि आई कैन कम, आई कैन सिट इन टॉक, एंड आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट केओस, राइट. उसी के साथ दूसरी कहानी सुनने के लिए अगर थोड़ा सा टाइम है, दूसरी कहानी was actually a team of psychologists who had come from Turkey. ये लोग आए थे जब पाकिस्तान में जलजिला आया था, which was around I think 2005 में हुआ था ना. तो हाँ, 2008 की बात है ये, कि हाँ, एक टीम आई थी टर्की से यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन करने के लिए. सो आवाज तो नहीं आ रही इसको? ओके. ठीक. सो सॉरी, मैं कहा थी, हाँ. सो द साइकोलॉजिस्ट टीम वाज फ्रॉम टर्की, और उन्होंने ये कहानी हमें सुनाई थी सुनामी की, कि जब सुनामी आया था दुनिया में, व्हिच वाज आई थिंक 2008 एज फार एज आई रिमेम्बर. तो उन्होंने ये बच्ची की कहानी बताई जो कि शायद 10 year old गर्ल थी, और शी वॉज फ्रॉम श्रीलंका. और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल उनके जो गांव थे या घर थे वो बिल्कुल समंदर के पास, और आपको पता है कि पूरे पूरे एरियाज पूरे खत्म हो गए, राइट. सो इसकी जो पूरी फैमिली थी, इन फ्रंट ऑफ हर आईज शी सॉ हर पेरेंट्स, हर सिबलिंग्स, एवरीबडी पास्ड अवे इन फ्रंट ऑफ, मतलब पानी में चले गए बस बेसिकली. खैर, जिसने जीना है उसने जीना है. तो ये पर्टिकुलर गर्ल सर्वाइव्ड, एंड शी बेसिकली, उसने वहां पे कोई ट्री था या कुछ था, ब्रांच था, उसको पकड़ लिया, फिर ऑब्वियसली शी वाज रेस्क्यूड. और हमारे पास जब ये कहानी शेयर कर रहे थे ये लोग, वो बच्ची किसी ने अडॉप्ट कर ली थी, और बड़े अच्छे से, मतलब शी वाज अ सेटल्ड चाइल्ड. जाहिर बात है ट्रॉमा था, लेकिन जब आपका मास ट्रॉमा होता है, यानी इतने बड़े स्केल पे ट्रॉमा था, तो ऑलमोस्ट एवरी फैमिली वाज इफेक्टेड, तो वो एक बिल्कुल लाइफस्टाइल शिफ्ट हो जाती है. तो इन दैट केस शी वाज वेरी सेटल्ड अपनी न्यू फैमिली के साथ, सब कुछ.
सब सही था, एक्सेप्ट वन थिंग। वो बच्ची कहती थी कि सब सही है, बस मैं फिश नहीं खाऊंगी। ये जुमला समझ आया? क्यों कह रही है वो? क्यों कह रही मैं फिश नहीं खाऊंगी? Why do you think? Why she said that? Think about it, right? वो उसके सामने अगेन पानी के अंदर, सब कुछ समंदर के अंदर, उसके पेरेंट्स चले गए, उसकी फैमिली चली गई। एंड वही बात जो वो इस बच्ची ने मुझे सिखाई, राइट? ये मेरी फैमिली है, और मेरे सामने मेरी मदर इसके अंदर गई है, और उसने भी यही कहा मेरे सामने मेरी फैमिली उसके अंदर गई है, आई आई डोंट वांट टू ईट फिश। अब वो जो साइकोलॉजिस्ट थे वो हमसे पूछ रहे थे कि डू यू थिंक इट्स राइट और डू यू थिंक वी शुड फोर्स हर टू ईट फिश? वो कंट्रोल वाली बात, राइट? कि मैं जबरदस्ती उसको वो करवाऊं जो मुझे सही लगता है, या मैं उसको वो इख्तियार दूं कि ठीक है ये आपकी बाउंड्री है, ये आपके लिए सेफ है, राइट? ये ठीक है अगर आपको नहीं करना। तो ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया, आई नो ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल है जो बड़े जनरल है, लेकिन मैंने आपको सोचने पे थोड़ा मजबूर किया है कि ये तो फिश की कहानी है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जिंदगी में कुछ लोग हैं कि मे बी दे आर रियली टॉक्सिक फॉर यू, एंड आपका चॉइस है दैट या तो आप उनको फिर भी इन्वॉल्व करो, या आप उनको थोड़ा सा डिस्टेंट दे दो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको निकाल दो, लेकिन आप कह रहे हो कि ओके माई माई लाइफ इज फाइन। लेकिन हर किसी को इतना ज्यादा हम कहते हैं ना राइट देने की जरूरत नहीं है। यू कैन मेक अ चॉइस, यू कैन सेट अ बाउंड्री, एंड यू कैन से राइट, दिस इज माई बाउंड्री, माई लाइफ इज गुड, माई लाइफ इज सेटल्ड, माई लाइफ इज but this is something that I don't want, right? And those are the kind of choices we make with people who are deciding to end a relationship or end a career or take a career change। ये चीज हम कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, but you can take a decision that okay, this is where it stops। बस ये मेरा लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं। मैं अपना कंपैशन, अपना ख्याल रखने के लिए आई वॉन्ट, no, I don't want this in my life, right? This is what I decide, this ends here। अदर देन दैट आई एम फाइन। सो इट डजेंट नेसेसरली मीन कि अब हर चीज को अच्छा बोलो, हर चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा। यू सेट योर बाउंड्रीज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ, राइट? सो लास्ट स्लाइड, आज का काम ये है कि आपने वाकई कोशिश करना कि स्टार्ट मेकिंग अ मैप ऑफ योर ओन हार्ट, कि ये दिल है आपका, एंड व्हाट इज इट दैट यू कैन डू फॉर योर ओन सेल्फ कंपैशन। क्या करना चाहोगे अगर आपको मौका मिला? हम कहते हैं ना पीसेस ऑफ योर हार्ट, आपके दिल के टुकड़े, वो तो उनमें आप अपने लिए, चाहे मैंने आपसे कल भी कहा था ना कि इफ यू लाइक बेकिंग, देन आई एम आस्किंग अच्छा चलो बेक, so no, my son likes chocolate cake or I don't know chocolate fudge, but mama what do you like? Maybe you said नहीं मुझे पसंद ही नहीं है चॉकलेट, मैं तो वनीला पर्सन हूँ, या आई डोंट नो स्ट्रॉबेरी पर्सन हूँ। So for sometimes, what is your heart want? How compassionate or how loving you are to yourself? And think about it कि इन pieces of the heart को glue करने के लिए, जोड़ने के लिए आप अपने लिए क्या कर रहे हो? Try and put it together and see what comes out। अभी तो आपको कोई कह भी नहीं रहा है कि फोर्स कर रहा है कि करो, पहले डालो तो कि क्या डालोगे, निकल के आए, what is your heart telling you, right? हम हमेशा ही कहते हैं your art talks, योर आर्ट कम्युनिकेट्स टू यू। कभी कभी तो चीख चीख के आर्ट बता रहा होता है कि ये चाहिए मुझे, राइट? कभी यू सरप्राइज योरसेल्फ कि ये मैं क्या लिख रही हूँ, या ये कैसा कलर आ गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग दैट आर्ट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह चीजें समझ आएंगी। सो बिकॉज इट्स फ्राइडे, मैंने थोड़ा जल्दी ऑफ किया है, but I'm going to stop this, but we have a few minutes if anybody wants to say something or ask something। Anybody wants to ask something? Any thoughts? कोई point है जो clear करना है? Anything?